Hello students, myself Sajan Bedi. Today we will discuss about the topic of Jacobians. ਤੇ Jacobian ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ +2 ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਟੌਪਿਕ Jacobians. Jacobian ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, if u v are the functions of x y having partial derivative of first order, ਜੇ u v दो फंक्शन है x y ਦੇ ਜਿਹਦਾ partial derivative exist ਕਰਦਾ ਪਿਆ first order ਦਾ, then determinant, then this type of determinant del u by del x, del u by del y, del v by del x, del v by del y is called Jacobian of u v with respect to x y and denoted by del u v upon del x y or Jacobian u v. That means ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ del u v upon del x y. ਇਹ ਆ ਗਿਆ Jacobian ਕਿਹਦਾ u v ਦਾ with respect to ਕਿਹਦੇ ਆਇਆ x and y ਦੇ. That means u ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਫਸਟ ਰੋ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, u ਦਾ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ with respect to x ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, with respect to y ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ v ਦਾ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ with respect to x ਕਰ ਲਿਆ, with respect to y ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿਮਿਲਰ ਕਾਈਂਡ ਜੇ ਤਿੰਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ u v w ਤੇ with respect to ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ x y ਤੇ z ਤੇ ਕੀ ਆਏਗਾ del u v w upon del x y z then ਤੇ ਕੀ ਆਏਗਾ u ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, u ਦਾ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ with respect to x y and z ਫਸਟ ਰੋ ਇਦਾਂ ਆਣੀ ਹੈ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਿਮਿਲਰ v ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ with respect to x y and z, then w the derivative with respect to x with respect to z. This is called Jacobian. Jacobian is a type of determinant solve करना है ਹੁੰਦਾ, ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। देखो सॉल्व करते हैं। if x is equals to r cos theta, y is equals to r sin theta, z is equals to z लिख देने हैं, z equals to z। उन्होंने क्या फाइंड del r theta z, सॉरी del x y z upon del r theta z ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਜੋ ਜੋ ਗਿਵਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖ ਲਓ। ਇਹ ਗਿਵਨ ਆ x y z ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ del x y z upon del r theta z। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਵੇਖ ਕੀ x ਦਾ with respect to r theta and z, theta with respect to z भी, फिर y ਦਾ with respect to सेकंड हो गया, y ਦਾ पार्शियल डेरिवेटिव with respect to r with respect to theta and with respect to z, then z ਦਾ डेरिवेटिव with respect to r with respect to theta ਤੇ with respect to z पार्शियल डेरिवेटिव करने हैं, ठीक है। ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वैल्यू आ गई है। then ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ था कि x equal to r cos theta, y is equals to r sin theta, z equals to किया z दी पार्शियल डेरिवेटिव से इतने सॉल्व कर लो, जिथे नहीं करने तो आपे तुहानू पता लग जाना, रफ च सॉल्व कर सकते हो। की वैल्यू आ गई जी, वैल्यू फिल कर देनी, कर ली x बाय कर लिया x का विद रिस्पेक्ट टू r, विद रिस्पेक्ट टू r करांगा cos थीटा कांस्टेंट, विद रिस्पेक्ट टू r का विद रिस्पेक्ट टू r 1 आ गया cos थीटा। देन हुण x का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जो x का विद रिस्पेक्ट टू थीटा किया r कांस्टेंट है, cos थीटा का क्या आ गया पार्शियल डेरिवेटिव माइनस sin थीटा ते क्या आ गया माइनस r sin थीटा। हुण x का विद रिस्पेक्ट टू z, z देते है नहीं, दैट मींस क्योंकि r तो थीटा दी फॉर्म है ते इथे z है नहीं, विद रिस्पेक्ट टू z क्या रहेगा 0। हुण y का विद रिस्पेक्ट टू r करांगे ते वो क्या रहेगा sin थीटा, ठीक है। y का विद रिस्पेक्ट टू थीटा करोगे तो क्या रहेगा r cos थीटा, तो विद रिस्पेक्ट टू z करोगे तो क्या रहेगा 0। हुण z का विद रिस्पेक्ट टू r है नहीं यार उत्थे भी तो 0 आ जाएगा,
ਤੇ z ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਥੀਟਾ ਉਹ ਵੀ 0 ਆ ਜਾਏਗਾ। z ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ z ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1। ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਕਸਪੈਂਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਚਾਹੇ ਲਾਸਟ ਕਾਲਮ ਲਾਸਟ रो थर्ड रो ਜਾਂ थर्ड ਕਾਲਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 ਨਾਲ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ cos ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ r sin ਥੀਟਾ अपॉन sin थीटा r cos थीटा ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੇ r cos स्क्वायर थीटा माइनस क्योंकि आप डाउन टू अप जाने माइनस ते माइनस माइनस r sin स्क्वायर थीटा ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਬਣ ਗਈ r cos स्क्वायर थीटा प्लस r sin स्क्वायर थीटा। r कॉमन आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितने होता 1 दे आंसर ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ। ठीक है, ये आ गया एक टाइप का क्वेश्चन। हुण देखो सपोज कि जिदा मैं बोलदा कि फंक्शन एक फंक्शन है, फंक्शन सपोज कर लेने आप गिवन हुए f1 f2 f1 f2 के फॉर्म। ठीक है, तो फंक्शन किदा एक्स वाई का तो f1 f2 की फॉर्म है तो यदा जकोबियन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई फाइंड आउट करांगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जकोबियन फाइंड आउट करांगे तो क्या देगा कर्व डेल ऑफ f1 f2 अपॉन डेल ऑफ एक्स वाई वो इदा करना। फंक्शन मतलब कि फंक्शन इदा एक क्वेश्चन करके भी देखने आप इदा की फॉर्म का बने हुए तो क्या आएगी वैल्यू डेल f1 अपॉन f1 ਦਾ with respect to x f1 ਦਾ with respect to y ਫਿਰ f2 ਦਾ with respect to x f2 ਦਾ with respect to y। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ f1 f2 f3 ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਦੈਨ ਉਹਦੇ with respect to 3 ਰੋਜ਼ 3 ਕਾਲਮ ਬਣ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ f1 f2 f3 f4 ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 4 ਰੋਜ਼ ਤੇ 4 ਕਾਲਮ ਬਣ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ चलो यहाँ पे सम देख लेते हैं क्या लिखा लेट एफ एक्स वाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर tan इनवर्स वाई फाइंड जकोबियन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो जकोबियन ऑफ एक्स वाई आप फाइंड आउट करेंगे तो जकोबियन ऑफ एक्स वाई कितना फाइंड आउट करना लिखा है। ठीक है, देखो फंक्शन है जकोबियन ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू कितने लिखा एक्स एंड वाई दे तो जकोबियन ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू हम साडे को फंक्शन की है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ x square plus y square tan inverse y upon x this can be written as f1 comma f2 ਤੇ f1 ਆ ਗਿਆ root x square plus y square f2 ਕੀ ਆ ਗਿਆ tan inverse y upon x। ठीक है, तो जकोबियन ऑफ द फंक्शन क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई फंक्शन की है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ f1 and f2 ਦੀ ਫਾਰਮ ਕੀ ਆਏਗਾ del f1 del x del f1 upon del y del f1 upon sorry del f1 upon f2 upon fx del f2 upon f of y। ਹੁਣ f1 ਦਾ with respect to x f1 ਦਾ with respect to y फाइंड आउट करना ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ f1 ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ √x square + y square ਆਈ फाइंड आउट ਕਰਾਂਗੇ del f1 upon del x with respect to x ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 1/2 ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਏਗਾ x square + y square पावर 1/2 माइनस -1/2 विद रिस्पेक्ट टू x कितना तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का कितना आ गया 2x y स्क्वायर कांस्टेंट आ गया। ठीक है, साडे को वैल्यू की बन गई दिस इज इक्वल्स टू x अपॉन √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर साडे को वैल्यू बन गई। ठीक है, देन उस तो अगे f1 ਦਾ विद रिस्पेक्ट टू y करांगे ते सिमिलर काइंड दे विद रिस्पेक्ट टू y करांगे सिमिलरली तो ही सॉल्व करना f1 ਦਾ with respect to y ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ y upon √x square plus y square। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ f2 ਦੀ ਗੱਲ f2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ
ठीक है। तो F2 की वैल्यू फिल करांगे तो की आ जाएगा 9 F2 कितना साडे को tan इनवर्स y अपॉन x, ठीक है। हुण F2 ਨੂੰ विद रिस्पेक्ट टू x कीता, ठीक है, डिफरेंशिएट कीता तो की आ गई वैल्यू F2 ਨੂੰ विद रिस्पेक्ट टू x ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ F2 ਨੂੰ विद रिस्पेक्ट टू x कीता, जो विद रिस्पेक्ट टू x कीता tan इनवर्स x ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ 1/1 + x स्क्वायर 1/1 + x ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ y upon x ਦਾ स्केयर, ਤੇ y upon x ਦੀ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ डिफरेंशिएशन करनी है तो होगी आ जाएगी y upon x से विद रिस्पेक्ट टू x करते पे होगी आ जाएगा -y upon x स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा ਤੁਹਾਡੇ को डायरेक्ट वैल्यू बन जाएगी, ये ਤੁਹਾਡੇ को वैल्यू बन जाएगी -y upon x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। सिमिलर ਇਹ F2 ਦੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਹੈ ਤੇ F2 ਦੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ y ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਆਏਗੀ ਵੈਲਿਊ x upon x square plus y square, ठीक। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਚ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਚ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। फंक्शन दिता, फंक्शन इज द फॉर्म ऑफ f1 एंड f2, ਆਪਾਂ ਜੈਕੋਬੀਅਨ ਲਿਖ ਰਹੇ, ਜੈਕੋਬੀਅਨ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਕਿਤੇ x y ਦੇ one the derivative with respect to x, f1 the derivative with respect to y, फिर f2 the derivative with respect to x, f2 the derivative with respect to y, ਤੇ ਆਪਾਂ f1 ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੇ with respect to x and with respect to y, ਜੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। देन ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਚ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਲ ਕਰਕੇ f1 ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਓਕੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ x upon root x square plus y square, ਤੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ y ਕਰਕੇ y upon root x square plus y square, ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x minus y upon x square plus y square, ਤੇ x upon x square plus y square, ठीक है। मल्टीप्लाई करना, ठीक है, तो की आ जाएगा साढ़े को सारा सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा x तो नीचे की पावर 1/2 तो कितनी आ गई 1, ये आ गया x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर 1/2 + 1 3/2, तो माइनस ते माइनस माइनस प्लस हो गई, ठीक है। माइनस क्योंकि माइनस एक लावांगे तो माइनस है भी आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, हो गया y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तो दोनों एलसीएम सेम आ तो ऊपर ऐड हो जाएगी, पावर कितनी आ गई 3/2 आ गई, तो 3/2 पावर 1 आ, 3/2 ਨਾਲ पावर 1 ਦਾ कैंसिल करके ਸਾਡੇ ਕੋਲ वैल्यू की बन गई 1/root x square plus y square, दैट मींस पावर ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆਨਸਰ, ठीक है। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਰਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ इनवर्स फाइंड आउट करना, इनवर्स जैकोबियन फाइंड आउट करना, वो फार्मूला की है 1 जैकोबियन ऑफ f, ठीक है। तो एक क्वेश्चन वास्ते आप एक होर फार्मूला करने कि सपोज करो कि जिदा एक्स वाई का जैकोबियन फाइंड आउट करना विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा, ठीक है। तो वो क्या रहेगा, तो आर थीटा का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, तो एक प्रॉपर्टी है जैकोबियन की कि डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा मल्टीप्लाई डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई इक्वल्स टू कितने 1 दी एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा फाइंड आउट कर लाँगे, तो इस फार्मूले ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ r थीटा ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x y ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ 1 upon ਸਮਥਿੰਗ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗੀ ਵੈਲਿਊ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ del r थीटा upon del x y equals to कितने आ जाएगा 1 upon del x y upon del r थीटा,
ठीक है। सिमिलर आर थीटा अपॉन एक्स वाई कर फाइंड आउट करना ते ये भी वही चीज़ है, ठीक है, कि फंक्शन की वैल्यू गिवन होएगी जे मान लो एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा की सपोज करो कि एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा गिवन वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा गिवन तो वो फाइंड आउट करने वास्ते कहते कर लै डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई फाइंड आउट करने वास्ते कहते हैं इथों डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा ते फाइंड आउट कर लांगे तो फिर फार्मूला ला देंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द जैकोबियन तो और देखो वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। तो जे नहीं तो फिर इदा का क्वेश्चन भी हो सकते हैं इनवर्स वाला, ये सेम इनवर्स का फार्मूला है, यही चीज़ है, ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन करके देखने हैं, तुम समझ लग जाएगी थोड़ी ज़्यादा। आप इनवर्स का एक क्वेश्चन करते हैं, इनवर्स का क्वेश्चन करना तुम ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम देखो कि जिदा लिखा इफ एफ एक्स वाई equals to x minus y x plus y find Jacobian f inverse of sigma neta कह लो कुछ भी लिखा हो सकता, ठीक है। हुण इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आप एफ इनवर्स, ठीक है, एफ इनवर्स की गल की हुण की है एफ एक्स वाई की है तुहाडे को एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई दिस इज ऑफ द फॉर्म एफ वन कॉमा एफ टू, ठीक है। तो तुहाडे को एफ वन की आ गया एफ वन की है फंक्शन एक्स वाई का एक्स माइनस वाई, एफ टू की आ गया फंक्शन एक्स वाई का एक्स प्लस वाई। तो जो हम जैकोबियन फाइंड आउट कर लांगे तो जैकोबियन फाइंड आउट करने वास्ते की हमें वैल्यू की मिलेगी जैकोबियन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जिदा हमने आप क्वेश्चन किया तो क्या लेगा डेल f1 अपॉन डेल x डेल f1 अपॉन डेल y डेल f2 अपॉन डेल x डेल f2 अपॉन डेल y। चलो देखो फाइंड आउट करो क्या आ जाएगी वैल्यू f1 का विद रिस्पेक्ट टू x कीता तो कितना आ गया 1, f1 का विद रिस्पेक्ट टू y कीता कितना आ गया -1, ठीक है। तो f2 का विद रिस्पेक्ट टू x कीता तो कितना आ गया 1, तो f2 का विद रिस्पेक्ट टू y कीता कितना आ गया 1। जो आप सॉल्व किया तो ये साढ़े को जैकोबियन ऑफ एफ फंक्शन का जैकोबियन सिर्फ डायरेक्ट जैकोबियन आया, इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो क्या है 2 माइनस ऑफ सॉरी 1 माइनस ऑफ -1 क्या है 1 + 1 कितना आ गया 2 यह वैल्यू आ गई फंक्शन के जैकोबियन की, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जो मैं यहाँ लिखा, ठीक है, तो आप फंक्शन का आप जैकोबियन फाइंड आउट कर लिया तो ये किया इनवर्स therefore Jacobian of f inverse manita equal to 1 upon Jacobian of xy, ठीक है। that means fxy जिदा लिखा fxy जड़ा fxy ये की है fxy equal to कितने होगा सिग्मा नीटा, ठीक है। ये हो गया तेरे को f1 एक ही हो गया f2 तो वो अकॉर्डिंग साढ़े को वैल्यू की बन गई 1/2 क्योंकि इतने फंक्शन की वैल्यू गई 2, ठीक है। यह वैल्यू साढ़े को होगी कैलकुलेट। अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं जिदा कि आप करते पे सी इस बेसिस से जिदा तो आ लिखा कि यह तो चलो प्रॉपर्टी आ गई कि यू वी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई हो गया या एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू यू वी हो गया तो आप रिवर्स करके भी इदा इनवर्स फार्मूला ला के भी कर सकते हैं या इस प्रॉपर्टी तो कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो कि इफ एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा तो फाइंड लिखा हुआ है डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई विदाउट यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। आप आए सॉल्व करना है, ठीक है। हुण एक्स की है आर कॉस थीटा वाई की है आर साइन थीटा फाइंड आउट करना डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा तो आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर लांगे, ठीक है। तो डेल तो वो वास्ते क्या इक्वेशन नंबर 1 है इक्वेशन नंबर 2 एडिंग एंड स्केलिंग एंड एडिंग करांगे आप
1 एंड 2 स्केलिंग एंड एडिंग करांगे तो की वैल्यू साडे को बन जाएगी स्केलिंग एंड एडिंग करके साडे को वैल्यू बन जाएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड ते राइट हैंड साइड r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा साडे को x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू कितने आ गया r स्क्वायर दी ये साडे को वैल्यू कितनी बन गई r स्क्वायर दी दिस इंप्लाइज दैट r इक्वल टू कितने आ गया रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ते डिवाइडिंग 2 by 1 2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ we get ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣੇਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋ 2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ y x r sin θ r cos θ sin r sin θ r cos θ ਸਾਡੇ ਕੋ ਬਣ ਗਿਆ tan θ y x ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ tan θ y x ठीक है तो थीटा इक्वल टू कितने आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ tan इनवर्स y x ਤੇ ਸਿਮਿਲਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ del r थीटा del xy ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ r ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x r ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ y r ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ थीटा सॉरी r ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਆ ਗਿਆ y फिर r ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ सॉरी थीटा ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਤੇ थीटा ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ y ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ ਜੇ xy r थीटा ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਿ x ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ r x ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ y x ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ थीटा ਤੇ x ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਸੌਰੀ y ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ थीटा y ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ थीटा ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ r ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x r ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ y ठीक है ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਮ ਸਾਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਬਣੇਗੀ ਪੂਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ this is equals to 1 by r सॉल्व करके देख लेना क्योंकि लास्ट की बनेगी वैल्यू 1 upon root x square plus y square ठीक है तो ये नाल दे आपां क्वेश्चन सॉल्व करने ने आप खुद ठीक है थैंक यू।